growth of the embryonic disc, and the development of trophoblast, and then some case discussion. अच्छा, ये मैंने जल्दी से डाल दिया था कि हमको एक रिव्यू कर लें डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड से. तो कौन मुझे बताएगा जल्दी से व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड? एनी salient features which you remember? जी, कौन फॉलो कर रहे हैं दादा? चलिए क्विक रिवीजन में ये देखें, जो फर्स्ट टॉप लेफ्ट पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये बताएंगे सेक्शन कौन सा है जो आपको नजर आ रहा है. हेलो, पूरी क्लास खामोश हो गई है. हाँ, ये कौन सा सेक्शन है बेटा? जी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने सैजिटल सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है. अच्छा, अब हम इसमें देख रहे हैं क्योंकि सबसे आगे जो है यहाँ पे इन्होंने कार्डियोजेनिक एरिया शो किया है और इन्होंने यहाँ पे प्रीकॉर्डल प्लेट वगैरह है उसको लिखा नहीं है, लेकिन पीछे हमें ये दिख रहे हैं कि एलेंटॉयस और ये भी नजर आ रहा है, कनेक्टिंग स्टॉक नजर आ रही है, ठीक है. एंड देन वी कैन सी दिस इज द प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है, जो कि कहाँ अपीयर होती है? ऑन द सरफेस ऑफ एपिब्लास्ट. और फिर हम देखते हैं कि यहाँ प्रिमिटिव पिट है एंड द पिट फॉर्म्स किसके अंदर होता है? प्रिमिटिव पिट प्रिमिटिव नोड के अंदर होता है, ठीक है. अच्छा, एक सेकंड में यहाँ पे वो आता है. अच्छा, ये a quick review. We will do a quick review of this. So first of all, the pre-notochordal cells, as you can see, they enter into the region of the primitive pit, and they start moving forward, and they form the notochordal process, which you can see in the sagittal section in red color. This notochordal process reaches up to the precaudal plate. Okay, and if somebody asks you the extent of the notochordal process, so that is from the primitive pit till the precaudal plate. Then next thing that happens is that the primitive pit also invaginates, which you can see in the second figure. ये वाली जो आपको नजर आ रही है, ठीक है. And as the pit extends into the process, it forms the notochordal canal. Next, what happens is that once the canal forms, this divides the notochordal process into two parts. One is the roof plate and the other is the floor plate. And the floor plate, what happens to it? It fuses with the underlying endoderm. And once it fuses, point degenerations occur between the endoderm and the floor plate of the notochord. And this results in formation of small cavities. And then these cavities coalesce together to form completely that erodes the floor of the notochordal process, right? And in this way, notochordal canal communicates with the yolk sac. आगे देखते हैं what happens next. As you can see in this figure, the remains of the notochordal process. ठीक है, remain क्या है? That is the roof. The roof of the notochordal process inculcates between the endoderm. ठीक है, on each side you can see the endoderm, and in between that is the notochord. ठीक है, next what happens at the cranial end of the, you can see in the lower figure, the cranial end of the notochordal process again starts proliferating and starts forming the definitive notochord. And this is formed finally by the rounding off of the notochord from the underlying endoderm, and finally it separates from the underlying endoderm. And underlying endoderm forms a complete new layer, right? And notochord lies above the endodermal layer. ठीक है, वो अब it is no more incorporated into the endoderm. ठीक है. अच्छा, फाइनली ये मैं आपको बताई थी कि नोटोकॉर्ड डिटैच हो जाती है अपनी अंडरलाइंग एंडोडर्म से. ठीक है. अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि जो टेम्पररी कनेक्शन रह जाता है बिटवीन दी
between the yolk sac cavity and the amniotic cavity. That is known as, उसको क्या कहेंगे हम लोग? आपके लिए MCQ में भी बड़ा important आ जाता है. This is the neurenteric canal that communicates the amniotic cavity with the yolk sac. This is a temporary connection, and once the notochord development is complete, this connection is also lost. ठीक है, चलें आगे चलते हैं. ये हमारी नोटोकॉर्ड की हमने एक रिव्यू किया है डेवलपमेंट को. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, ये मुझे कौन बताएगा क्लास में से? मिनाहिल आप बताएंगी? महपूना? और कौन बताएगा मुझे? सिग्निफिकेंस क्या है नोटोकॉर्ड की? Is it important in the induction of some part of the body? Ma'am, vertebrae. No. Vertebrae, yes, in the sense कि musculoskeletal structures, ठीक है, उसकी axial skeleton के जो parts हैं उनको induce करती है, ठीक है. और इसके अलावा induction. Ma'am, induction of what? Induction of forebrain. Introduction of central nervous system. ठीक है, नोटोकॉर्ड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इतनी लंबी नोटोकॉर्ड बन रही है ना, तो इट इज इंपॉर्टेंट इन द इंडक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, whereas प्रीकॉर्डल प्लेट इज इंपॉर्टेंट इन द इंडक्शन ऑफ फोरब्रेन. ठीक है, अच्छा चलें आगे चलते हैं. अब हम अच्छा देखते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल्स एसोसिएटेड विद गैस्ट्रुलेशन. ठीक है, teratogenisis associated with gastrulation. Beginning of third week of development is a highly sensitive stage for teratogenic insult. Teratogens, what are teratogens? Any agent that can cause a birth defect is a teratogen. ठीक है, कोई किसी किस्म का भी birth defect जो कर सकता है, जैसे रेडिएशन है, ठीक है, that can induce a birth defect. जैसे infectious agents हैं, जैसे viruses हैं. You don't know, अभी आजकल तो कोविड का वायरस है और इसके ऊपर अभी इतनी रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारी और, जैसे रुबेला वायरस है तो बहुत सारे कार्डियक सिम्टम्स और आई के ऊपर इफेक्ट करता है, बहुत सारे और इसके एबनॉर्मलिटीज ये लेकर आ सकता है इन द बेबी. ठीक है, सो इस इन एजेंट्स जो कि एनवायरमेंटल एजेंट्स भी हो सकते हैं और जेनेटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, दे कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स इन द न्यूबॉर्न बेबी. अच्छा, तो इसलिए जो है ये टाइम पीरियड गैस्ट्रुलेशन का इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, एट दिस टाइम फेट मैप्स आर एस्टैब्लिशिंग. यू नो द फेट मैप, all types of mesoderms form during their formation, and these cell populations that form, they can be damaged by teratogens. अच्छा, अब फर्स्ट हम कंडीशन देखते हैं, इज द holoprosencephaly. Holoprosencephaly में basically the midline structures are affected. For example, high doses of alcohol kill cells in the anterior midline of the germ disk, results in the deficiency of the midline structures. तो अब यहाँ देखें कि सिंगल आई आपको नजर आएगी, सिंगल ब्रेन वेंट्रिकल नजर आएगा. ठीक है, सो इस तरह के आपको बर्थ डिफेक्ट्स इसमें नजर आते हैं. स्मॉल फोर ब्रेन मर्ज जो है आईज हो जाती हैं और आईज आर वेरी क्लोज टुगेदर, दिस इज नोन एज हाइपोटेलोरिज्म. एंड देन और सिंगल आई भी हो सकती है, इसको कहते हैं साइक्लोपिया. देन देयर इज अनदर कंडीशन व्हिच इज नोन एज कॉर्डल डिसजेनेसिस, और इसको हम कहते हैं सेरेनोमीलिया. सेरेनोमीलिया इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर, कैसी लग रही है आपको ये पिक्चर? इसी उससे रिजेंबल करती है. ये जो है ना, आप देख रहे हैं कंडीशन कॉर्डल डिसजेनेसिस. अब देखिए, द बेबी हैज गॉट अ मरमेड लाइक फिगर. ठीक है, और जो है ये क्यों होता है, व्हाई दिस इज कॉल्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट मेसोडर्म लेड डाउन इन द कॉर्डल मोस्ट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है, सो प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है अगर वो जल्दी डिसअपियर कर जाती है तो क्या हो सकता है, और या इनसफिशिएंट मेसोडर्म ले डाउन कर रही है तो ये कंडीशन हो सकती है और इसको कॉर्डल डिसजेनेसिस कहते हैं. इसमें क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज ऑफ लोअर लिम्ब होंगी,
यूरोजेंटल सिस्टम की हो सकती हैं, लंबोसेक्रल वर्टिब्रा की हो सकती हैं, because all parts of mesoderm form these structures. The intermediate mesoderm forms eurogental system, and in the lower part and lower limb formation, lumbosacral vertebra formation. तो ये सब फ्यूज हो जाएगा लोअर लिम्स, इसमें ज्यादातर आपको फ्यूज नजर आ रही है। और ये कंडीशन जो है ज्यादातर एसोसिएटेड है विद मैटरनल डायबिटीज। इस कंडीशन में और क्या हो सकता है? हाइपोप्लेजिया एंड फ्यूज लोअर लिम्स, वर्टिब्रल एब्नॉर्मलिटीज, रीनल एजेनेसिस, इम्परफोरेट एनस एंड एब्नॉर्मलिटीज ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स। तो आपने क्या याद रखना है इसके अंदर कि हमने फर्स्ट कंडीशन देखी थी जो कि होलोप्रोजेंसेफली थी, ठीक है, और वो बिकॉज ऑफ एनी ट्रेटोजेनिक इंसल्ट, और उसमें ट्रेटोजन क्या था? अल्कोहल था, जिसकी वजह से मिड लाइन स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होते, ठीक है, दैट कंडीशन इज होलोप्रोजेंसेफली। ये जो सेकेंड कंडीशन है, दिस इज कॉर्डल डिसजेनेसिस एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइरेनोमीलिया, व्हिच इज लाइक मर्मेड लाइक फिगर, ठीक है, और इसमें लोअर लिम्ब फ्यूज्ड हो जाती हैं। आपने देखा है ना मर्मेड, वो जो अक्सर आजकल बच्चों के कार्टून्स वगैरह में भी नजर आ रहा होता है, तो वो बेसिकली उसमें लोअर लिम्ब्स फ्यूज्ड होती हैं। और फेरी वैसे तो ट्यूमर्स एसोसिएटेड विद गैस्ट्रुलेशन। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अगर if you remember, if primitive streak does not disappear and continue to lay down mesoderm, what will happen? आपने इसका आंसर तलाश किया था? Anyone? I've asked you to solve this question. If primitive streak does not disappear, what will happen? ट्यूमर्स बनेंगे। ट्यूमर्स बनेंगे, वेरी गुड। और इस ट्यूमर को पर्टिकुलरली क्या कहते हैं? Because it develops in the sacrococcygeal region, we call this tumor as sacrococcygeal teratoma। ये देखा आपने, इतना बड़ा ट्यूमर बना हुआ है। This is because primitive streak does not disappear, it continue to lay down mesoderm, ठीक है, बनाती जाती है mesoderm, तो इस वजह से ये डिसअपियर नहीं होता। Remnants of primitive streak persist in the sacrococcygeal region. They are clusters of कैसे cells हैं? ये pluripotent cells हैं। Do you remember what are the pluripotent cells? हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि pluripotent cells क्या थे। मैम जो दूसरे सेल्स को लाइक राइस कहते थे कि राइस नहीं होता। नहीं, हमने कहा था कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो डेवलप होते हैं, सम आर टोटीपोटेंट, सम आर प्लूरीपोटेंट, और फिर मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट हो जाते हैं। तो प्लूरीपोटेंट कौन से होते हैं? That can differentiate either into fetal or adult. अच्छा, तो मुझे इतना क्लियर आपका आंसर समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि प्लूरीपोटेंट सेल्स आर दोज व्हिच फॉर्म ऑल द 3 टाइप ऑफ जर्म लेयर्स, ठीक है, और इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये हर तरह की जर्म लेयर बना सकते हैं, तीनों तरह के, आई मीन, एंड बट दे डू नॉट चेंज इनटू और they do not form the ट्रोफोब्लास्टिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो यानी कि प्लेसेंटा और उसके टिश्यूज नहीं बनाते, लेकिन एम्ब्रियो के अंदर तीनों टाइप की जर्म लेयर्स बना सकते हैं। और जो टोटीपोटेंट होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बोथ द प्लेसेंटल स्ट्रक्चर्स यानी ट्रोफोब्लास्टिक स्ट्रक्चर्स एज वेल एज एम्ब्रियोब्लास्टिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सो वो दोनों तरह के चीजें बनाते हैं। तो ये जो यहाँ पे क्योंकि प्लूरीपोटेंट सेल्स क्लस्टर करते हैं, तो दे प्रोलिफरेट एंड दे फॉर्म ट्यूमर्स। तो इस ट्यूमर में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या होगा जब इसको कट सेक्शन में देखेंगे, तो इसमें तीनों जर्म लेयर्स के पार्ट्स होंगे, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्मल आपको पता है टूथ एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है, हेयर एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है, तो आप इसमें देखेंगे कि हेयर भी हो सकता है, टूथ भी हो सकता है। फिर आप इसमें मेसोडर्मल कोई बोन पार्ट, कोई कार्टिलेज, इस तरह की चीज आपको नजर आएगी, तो हर तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर and one in 37,000 I think इसका इंसिडेंस है। मुझे इसको थोड़ा ये स्क्रीन आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो टेराटोमोस होते हैं,
समटाइम्स ये और एक रीजन इनका, एक तो प्राइमोडियल, एक मैंने आपको मल्टीपोटेंट सेल्स बताए, एक दूसरा ये बताएं कि मिसडायरेक्टेड प्राइमोडियल जर्म सेल्स दैट लॉज इन एक्स्ट्रागोनाडल साइट्स यूजुअली डाई, बट इफ these cells survive they may develop into teratomas. वो होता है ना प्राइमोडियल जर्म सेल्स, वो भी सेकेंड वीक में माइग्रेट करना शुरू कर जाते हैं एपीब्लास्ट से, और वो फिर योक सैक की पोस्टीरियर वॉल से होते हुए दे रीच थ्रू द मेसेंट्री, डोर्सल मेसेंट्री से होते हुए दे रीच टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज गोनाड्स. बट समटाइम्स कुछ मिसडायरेक्ट भी हो सकते हैं ना, और अगर जो मिसडायरेक्ट होते हैं नॉर्मली वो डाई कर जाते हैं, लेकिन इफ दे सर्वाइव दे कैन कन्वर्ट इनटू सम ट्यूमर्स और टेराटोमस बना सकते हैं. नीचे फिगर में देखें, आपको डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जब आप पैथोलॉजिकल एनालिसिस इसका करते हैं. Teratomas are bizarre growths that contain scrambled mixtures of highly differentiated tissues such as skin, hair, cartilage, and even teeth. तो ये एक उसका हिस्टोलॉजिकल दिखा रहे हैं, और ग्रॉस एनाटॉमी में उसको कट सेक्शन में दिखा रहे हैं, एंड दे आर क्वाइट लार्ज. अब मुझे आप जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कर दें, ये जिसपे मेरा कर्सर है ये क्या है कंडीशन, क्योंकि समटाइम्स आपको ऑस्पी के अंदर हम ये फिगर्स रख देते हैं, पिक्चर्स लगा देते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करनी होती है. तो फर्स्ट क्या है ये, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हॉलो फ्रोजन सेफली. ठीक है. द सेकंड कंडीशन मिडिल में जो है इसको क्या कहेंगे, सेक्रो कॉक्सिजियल. सेक्रम और कॉक्सिस से आप याद रखेंगे, सेक्रो कॉक्सिजियल टेराटोमा. एंड द थर्ड कंडीशन इज कॉर्डल डिसजेनेसिस. कॉर्डल डिसजेनेसिस मुश्किल नाम है इसलिए मैं आपसे करवा रही हूँ ताकि आपके मुंह पर चढ़ जाए. ठीक है. सो कॉर्डल डिसजेनेसिस और सेरिनोमीलिया, इनको आप जाके और मजीद भी नेट से देख सकते हैं. अच्छा, जल्दी से हम ये केस देखते हैं. A live-born infant delivered normally at term by a 27-year-old third gravida. Third gravida here means कि उसकी third pregnancy है. She gave history of developing gestational diabetes during pregnancies. Examination of the baby revealed multiple congenital abnormalities such as fusion of lower limb, single leg with 1 foot and 5 toes, absent external genitalia, imperforate anus, abnormalities of urogenital system, and umbilical cord with single umbilical artery. Autopsy was declined by the parents. Question is, identify the anomaly or name the anomaly. Caudal dysgenesis. Very good. ये किसने बताया, नाम बताओ. रोशाने. Very good, रोशाने. Second question है, reason for this abnormality. क्यों होता है? Disappears early. Very good. Primitive streak जो है वो does not it disappear early, और जो है it lays down insufficient mesoderm. ठीक है. तो insufficient mesoderm is basically इसकी reason है. ठीक है. And that is because कि primitive streak अपना function proper नहीं कर रही, disappear भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि functional ना हो, proper function ना करे. ठीक है. तो दोनों रीजंस हैं. और आगे क्या क्वेश्चन है, हाँ चने मैं इसमें और भी पूछ रही थी ये कि इट इज एसोसिएटेड, तो ये हमने ऊपर लिखा हुआ है कि जेस्टेशनल डायबिटीज इसका क्लू है. ठीक है. कि उस इस कंडीशन में ये भी होता है. और फिर अदर क्लूज क्या है कि फ्यूज लोअर लिम्स हैं, और सिंगल है, वो जेनेटिलिया की एब्नॉर्मलिटीज हैं, क्योंकि हमें पता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो है वो क्या बनाती है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो है वो बनाती है क्या क्या, गोनेड्स एंड यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो वो सारे भी है इसमें लिखे हैं. फिर इसमें बाद में पहले क्वेश्चंस दे दिए जाते थे कि ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन. तो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस आपने पूरा लिखना होता है. अच्छा, बर्थ डिफेक्ट एसोसिएटेड विद लैटरलिटी, हमने कहा था कि ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट एंटेरो पोस्टीरियर एक्सेस डेवलप हो जाती है, वेंट्रल डोर्सल एक्सेस डेवलप हो जाती है, एंड क्रेनियोकॉर्डल बन जाती है. ठीक है. एंड लेफ्ट एंड राइट साइड. ठीक है. तो इश्यूज विद लेफ्ट एंड राइट साइड क्या हो सकते हैं, लेटरलिटी के इश्यूज कहलाते हैं. ठीक है. एंड साइटस सॉलिटस कहते हैं कि नॉर्मल पोजिशनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. लेकिन अगर पोजिशनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स रिवर्स हो जाए
और मिरर इमेज कहलाता है वो, तो दैट इज नोन एज साइटस इनवर्सस, राइट। और इसमें जैसे क्या होता है साइटस इनवर्सस में, हर चीज जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे हो जाएगी, जो राइट साइड पे ऑर्गन्स है वो लेफ्ट पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट इज मोर ऑन द लेफ्ट साइड, तो वो राइट पे हो जाएगा। स्प्लीन इज टोटली ऑन द लेफ्ट साइड, वो राइट पे चली जाएगी, ठीक है। स्टमक इज ऑन द लेफ्ट साइड, वो राइट पे चले जाएगा, राइट से लिवर जो है वो उधर आ जाएगा। तो ये इसका मिरर इमेज बन जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, साइटस इनवर्सस है, और ये एसोसिएटेड है विद लेटरलिटी, ठीक है। अच्छा, फिर एक कंडीशन है कार्टर जेनर सिंड्रोम। 20% ऑफ द पेशेंट्स विद कंप्लीट साइटस इनवर्सस, जिनमें ये लेटरलिटी के इश्यूज आ रहे होते हैं, उनमें ये कार्टर जेनर सिंड्रोम भी हो जाते हैं। और उसके 3 कार्डिनल फीचर्स हैं। एक ब्रोंकिएक्टेसिस, जो आपके ब्रोंकाई हैं उनमें से म्यूकस जो है वो थ्रो आउट नहीं कर सक रहे, ठीक है, कॉफ आउट नहीं कर सक रहे। इसी तरह क्रोनिक साइनोसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है। बिकॉज उसका रीजन क्या है कार्टर जेनर का, एबनॉर्मल सीलिया। तो इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम भी कहते हैं, एबनॉर्मल सीलिया भी इसमें होते हैं, इसलिए क्योंकि सीलिया आर रिक्वायर्ड इन द फिलोपियन ट्यूब, मूवमेंट वो प्रोपेल करते हैं एग को, ठीक है। तो अगर सीलिया वहां प्रॉपर नहीं होंगे तो फिर जाहिर है कि एग अपनी जगह पे नहीं जाएगा एम्पुला में, और फिर जो है वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। सो ये 3 कार्डिनल फीचर्स और कार्टर जेनर सिंड्रोम का रखना है, ये दोनों कंडीशन जो है दे आर एसोसिएटेड विद लेटरलिटी। चलिए क्विकली हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। Initially flat and round, gradually becomes elongated with broad cephalic and narrow caudal end. हमने देखा था ना कि पहले egg shape था, फिर pear shape हुआ, embryonic disc, और फिर slipper shaped हो गया. In cephalic part, germ cells begin their differentiation, while the caudal part differentiates by the end of 4th week. तो हमने हमेशा देखा है कि क्रेनियल पार्ट जैसे नोटोकॉर्ड भी क्रेनियली पहले राउंड प्रोलिफरेट करके राउंड ऑफ होती है, और फिर कॉर्डली दिस कंडीशन गोज ऑन, ठीक है। इसी तरह जर्म डिस्क की भी ग्रोथ हमने सेकेंड वीक में भी देखा था, सब कुछ एम्ब्रियोनिक पोल पे ज्यादा हो रहा था एज कंपेयर टू एब एम्ब्रियोनिक पोल। इसी तरह क्रेनियल एंड पे ज्यादा होगा ग्रोथ एज कंपेयर टू कॉर्डल पार्ट, ठीक है। उसमें डिफरेंशिएशन बाद में होती है। Thus, while gastrulations occurring in the caudal segments, cranial structures are differentiating cephalocaudally. तो नीचे तो अभी समझे caudally तो germ layers बन रही हैं, और ऊपर क्या हो रहा है cranially उनसे structures differentiate कर रहे हैं। हर germ layer अपने अपने structures बनानी शुरू कर देगी। तो differentiation हम क्या कहते हैं, occurs cephalocaudally, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी फिगर दिखाई थी। फर्दर डेवलपमेंट में हम देखते हैं क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट। अब सबसे पहले हमने देखा था कि प्राइमरी विलाई दे स्टार्ट फॉर्मिंग ऑन 13th डे ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सो उसका स्ट्रक्चर क्या था, ये क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है, और उसमें क्या नजर आता है कि आपको अंदर साइटोट्रोफोप्लास्टिक सेल्स हैं और बाहर सिंसिटियोट्रोफोप्लास्ट। आप जरूर जाके अपना 13 डे को देखिएगा, मैंने शायद अभी यहाँ पे शो नहीं किया इस फिगर में, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो कोरियोनिक प्लेट की मेसोडर्म थी that starts going into this primary villi, ठीक है, वो भी इसके अंदर इन्वेजिनेट कर जाती है, और प्राइमरी villi converts into secondary villus, और it develops a mesodermal core, ठीक है, besides the other 2 layers cyto and sensitio। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि जो मेसोडर्म है उसके अंदर डिफरेंशिएट कर जाती हैं वेसल्स एंड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर मेसोडर्मल होते हैं, और अब हम इस विलस को टर्शरी विलस कहते हैं। तो ये फर्दर डेवलप हो रहा है ट्रोफोब्लास्ट, और टर्शरी विलाई फॉर्मेशन हो रहे हैं। और जैसे जैसे विलाई का काम क्या होता है, इन दी एंड एक्सचेंज करना है। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स कम हो रहे हैं टू क्रिएट अ थिनर बैरियर, ठीक है, थिन से थिन कैरियर। बाद में मेसोडर्म भी एक स्टेज आएगी कि बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, और डायरेक्टली सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो कम्युनिकेट करती है विद द वेसल, ताकि सबसे अच्छा एक्सचेंज हो सके, क्योंकि प्लेसेंटा का मेन फंक्शन ही क्या है, एक्सचेंज। और ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है, प्लेसेंटा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैपिलरीज ऑफ द टर्शरी विलाई। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सारे जो है ना, ये अब टर्शरी विलाई देखें, आपको मैं यूं दिखाती हूँ कि ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है, एम्ब्रियो है, एमनियोटिक एंड कोरियोनिक योक कैविटीज हैं, एंड द होल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर यानी कि गैस्ट्रूला, it lies into this large chorionic cavity, exocoelomic cyst भी आपको नजर आ रहे हैं, and this is the connecting stalk. The vessels in the embryo, they communicate with the vessels in the connecting stalk.
They in turn communicate with the vessels in the chorionic plate, and then from their vessels originate that goes into each villus, ठीक है, into each tertiary villus, ठीक है. अच्छा, ये देखें कि जो रेड स्पेसेस नजर आ रही हैं, these are the intervillus spaces which are lined by syncytial the green layer, ठीक है, ये syncytial है. अच्छा, और उसके अंदर आप देखें कि maternal blood is inside the intervillus spaces and fetal blood किसके अंदर है, is in the villi, ठीक है. tertiary villi के अंदर जो vessels हैं, they contain the fetal blood, और maternal blood is in the intervillus space, and this is the barrier that is formed के अगर हम इसको करें तो from syncytial trophoblast to the fetal vessels. तो क्या क्या है, लाइनिंग ब्लड है, पहले तो मैटरनल ब्लड है, फिर सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट है, फिर मेसोडर्म है, और फिर एंडोथेलियम ऑफ द फीटल कैपिलरीज, ठीक है. तो इस तरह करके आपको ये सारा नजर आ रहा है. So capillaries of tertiary villi contact with capillaries in the mesoderm of chorionic plate and connecting stalk, and which in turn contact with the intra-embryonic circulation. Trophoblast at the end of third week क्या होगा, it has a radial appearance, आप देखें बिल्कुल radially, और आपको ये नजर आ रहा है. Hence जब हार्ट बीट शुरू होती है in the fourth week of development, तो विलस सिस्टम सारा रेडी है, ठीक है. तो ये कोरिलेट आपने करना है कि हार्ट कब शुरू हो जाएगा, फोर्थ वीक के अंदर, और उस वक्त विलस सिस्टम बिल्कुल रेडी हो कि वो सप्लाई कर सकते ब्लड को. इंटरविलस स्पेसेस कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, उनको किससे लाइन करती हैं, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से. ओरिजिनेट भी आपको पता है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर लेक्यूने बनते हैं, और लेक्यूना से फिर लार्ज स्पेसेस बनती हैं जहाँ पे यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन आई थी, और वही बड़ी होके फिर स्पेसेस इंटरविलस स्पेसेस कहलाती हैं. अच्छा, ये वाली पिक्चर देखिए, इसमें आपको नजर आएगा डिफरेंट चीजें. अब ये कनेक्टिंग स्टॉक है हैविंग फीटल वेसल्स, उसके बाद ये कोरियोनिक प्लेट में जाती हैं, और फिर उसके बाद आपको विलाई के अंदर, टर्शरी विलाई के अंदर जाती है. अच्छा, लेकिन फिर भी विलाई की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है. आपको इंटरविलस स्पेसेस नजर आ रही हैं, मैटरनल वेसल्स, एंडोमेट्रियम, राइट. अच्छा, आप देखते हैं कि साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है ना, दैट प्रोलिफरेट्स मोर and grows more, and then communicates with the adjacent cytotrophoblastic cells, ठीक है. In this way, एक villus के cytotrophoblastic cells, they communicate with the adjacent villus cytotrophoblastic cells, and they form a complete shell around the villi, ठीक है, around the trophoblast, and this shell is known as outer cytotrophoblastic shell, ठीक है. और इसका पर्पस क्या है, ये सपोर्ट करती है पूरे के पूरे इस कोरियोनिक डेरिवेटिव को, इस गैस्ट्रुला को, ये पूरे के पूरी शेल सपोर्ट करती है और एंकर करती है इन द एंडोमेट्रियम, ठीक है. एक बात तो ये नोट कर लें कि आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल बन गई. दूसरे आप देखें, जो विलाई एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द कोरियोनिक प्लेट अप टू द आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल, इन पूरे विलाई को हम क्या कहते हैं, इस पूरे विलस इज द सिंगल विलस को हम क्या कहते हैं, स्टेम विलाई और एंकरिंग विलाई. और इनसे जो विलाई ओरिजिनेट करेंगे और ब्रांच आउट करेंगे, दीज आर द फ्री विलाई और टर्मिनल विलाई. और ये मैं आपको बैरियर बता रही थी बिटवीन द इंटरविलस स्पेस एंड द मैटरनल ब्लड, ठीक है. क्या बैरियर है, आउटर इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, मेसोडर्म एंड एंडोथेलियम. और होगा क्या, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और मेसोडर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ये जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और थिन आउट हो जाएंगे और डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद हो जाएंगे एंडोथेलियम, और फिर एक्सचेंज ऑफ ब्लड कैन टेक्स प्लेस बिटवीन द मैटरनल एंड द फीटल वेसल्स. So embryo is attached to trophoblastic shell by connecting stalk, और ये connecting stalk बाद में क्या कहलाती है, umbilical cord. तो placenta is attached to the fetus by means of umbilical cord, ये बाद में बन जाती है, लेकिन इस स्टेज पे हम इसको connecting करते हैं. So case 2 को जल्दी से देखते हैं.
केस 2 क्या था कि a 34-year-old non-smoker male born to non-consensuous parents. He presented to the outpatient with chief complaints of recurrent episodes of common cold, sneezing, and cough with expectoration for past 10 years. Exertional shortness of breath है for last 5 years. And not having children despite being married for last 14 years. क्या हो गए? क्या ये diagnosis क्या हो गई? Carter-Jenner syndrome. Diagnosis of Carter-Jenner syndrome was made. On examination, the vital parameters were within normal limits. तो क्वेश्चन क्या है कि what is the reason for this defect? Abnormal cilia. Very good. ठीक है, सो इसके अंदर एबनॉर्मल सीलिया होते हैं और फिर आगे फर्दर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दिस कंडीशन अकर्स ड्यूरिंग लेटरलिटी डिफेक्ट्स के अंदर आती है ये कंडीशन, और ये साइटस इनवर्सस जो होते हैं उसके साथ भी एसोसिएटेड है. 20% केसेस जो होते हैं वो साइटस इनवर्सस के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं. तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर सकते हो, लेकिन मेन बात आपने बिल्कुल ठीक बता दी है कि एबनॉर्मल सीलिया है, रीजन यही है. सेकेंड है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस डिफेक्ट. तो फीचर्स तो आपने देखा है ना, ये लिखे हुए, लेकिन कार्डिनल साइंस क्या हो गए? 3 थे. ब्रोंकिएक्टेसिस था, फिर क्या था? क्रॉनिक साइनोसाइटिस था, एंड इनफर्टिलिटी. वेरी गुड. तो मेन फीचर्स ऑफ दिस डिफेक्ट उन्होंने लिखे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उनके थोड़ा आइडिया आपको मिल रहा है वहां से ना, क्लूज दिए हुए, तो आपने उन्हीं क्लूज से लेके आपने इसको सॉल्व करना होता है. और फिर थर्ड क्या है? बस यही 2 क्वेश्चन थे, ठीक है. थर्ड हम क्वेश्चन बनाते तो हम कुछ और पूछ लेते हैं इसके साथ. क्या कहते हैं अदर ट्रेटोजेनेसिस के और क्या क्या एसोसिएशंस हैं या उसके और क्या क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं रिलेटेड टू लेटरलिटी, ये भी पूछा जा सकता था, ठीक है. तो इस तरह करके आ सकता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट. इसको आप अच्छी तरह पढ़िएगा जरूर. और कोई आप प्रॉब्लम कहीं और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? मैम स्केच नोट हाँ, करते हैं कि क्या ड्रॉ. स्केच नोट्स बुक्स के अंदर बहुत सिंपल है. जो पहला पेज और दूसरा पेज है, जो फर्स्ट पेज है वो जनरल एम्ब्रियोलॉजी है जो आप पढ़ रहे हैं, और आपकी ये नेक्स्ट जो है सिर्फ 3 लेक्चर्स जो है वो रह गए हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी के, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी फॉर द मॉड्यूल, ठीक है, और ब्लॉक के लिए भी. तो आपने बस उसकी जो डायग्राम, जो नंबर लिखा हुआ है ना, पेज नंबर और डायग्राम, वही डायग्राम आपने ड्रॉ कर लेनी है. फॉलो द बुक कलर्स, क्योंकि वो फिर आपके माइंड में याद रहते हैं. कोई नए पिंक और फलाने कलर ना लगा दीजिएगा, जैसे कि हम इसमें प्रेजेंटेशंस में यूज कर लेते हैं मुख्तलिफ रंग, तो ये नहीं आपने यूज करने, ठीक है. और आपने स्टिक टू द कलर्स, ताकि फिर आप आइडेंटिफाई जब आते हैं ना इसमें, ऑस्पी के अंदर भी बहुत आते हैं कि मॉडल भी रखें. वो तो जब हम कॉलेज जाएंगे तो आपको मॉडल इंशाल्लाह दिखा देंगे. एक तो मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी था आपको. तो बाकी ये कि जो है ज्यादातर आपको जो डायग्राम्स होती हैं वो आ जाती हैं ऑस्पी के अंदर, और आपको डायग्राम को लेबल करना होता है या कुछ इस तरह का, ठीक है, या आइडेंटिफाई, जैसे हमने पिक्चर बताई थी आपको, या कोई क्लू दिया हुआ होगा इसी तरह का छोटा सा केस सिनेरियो, और आपने उससे भी आइडेंटिफाई करना होता है. तो इसलिए क्लिनिकल्स को साथ साथ पढ़िएगा. और एक हम गो थ्रू क्लिनिकल्स का बिल्कुल लास्ट लेक्चर रख देंगे, जिसमें सारे क्लिनिकल्स के ऊपर एक दफा दोबारा चले जाएंगे, ठीक है. हाँ, बस आपने ड्रॉ करना है और कुछ नहीं. जो डायग्राम का नंबर लिखा हुआ है वही आपने ड्रॉ करनी है स्केच कॉपी के अंदर. ओके मैम. और एनीथिंग एल्स? जैसे हमने पहले टेस्ट लिया था, हम इसका भी एक टेस्ट रखेंगे बाद में, जब आप एम्ब्रियोनिक पीरियड भी कर लोगे बिफोर योर मॉड्यूल, ताकि आपको जरूर मॉड्यूल में भी हेल्प हुई होगी. आप एक दफा आपका गो थ्रू हो जाता है एम्ब्रियो, हिस्टो एंड जनरल एनाटॉमी के टेस्ट, तो साथ साथ हिस्टो, एम्ब्रियो और जनरल एनाटॉमी भी आप देखते जाएंगे, तो ताकि आप फिर एमसीक्यूज, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि आप एमसीक्यूज करें, तो वो फिर आप एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं और आपको आइडिया हो जाता है ना. ठीक है, चलें. ओके, ईद मुबारक आप सब लोगों को बहुत ज्यादा मेरी तरफ से. और अल्लाह ताला ये ईद जो है, इसमें इतनी सारी कैटास्ट्रोफी है हमारे अराउंड, और हम किसी के काम आ सकें इस ईद पर, ये है. तो आप लोग सब प्रोटेक्टेड और सेफ रहें. अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए, और आप लोगों को शब कदर भी नसीब हो और मुझे भी नसीब हो, और सब सेहत और आफियत में रहें, आप लोग भी और आपके घर वाले भी.
Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Please send me all the